Hello and welcome students. In this video we shall study the next chapter of Honeydew, that is A Visit to Cambridge, written by Firdaus Kanga. Before you read, this is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them disabled or differently abled. As we now say, Stephen Hawking is one of the greatest scientists of our time. He suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer, which speaks for him in a machine like voice. Firdaus Kanga is a writer and journalist who lives and works in Mumbai. Kanga was born with brittle bones that tended to break easily when he was a child. Like Hawking, Kanga moves around in a wheelchair. The two great men exchange thoughts on what it means to live life in a wheelchair and on how the so-called normal people react to the disabled. यह दो लोगों की मीटिंग की एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी असाधारण कहानी है। दोनों ही विकलांग हैं, दोनों ही हैंडीकैप्ड हैं। स्टीफन हॉकिंग हमारे समय के महान वैज्ञानिकों में से एक हैं। वे एक प्रकार के लकवे से पीड़ित हैं जिससे वे व्हीलचेयर तक सीमित हैं और कंप्यूटर के बटन दबाते हैं जिससे कंप्यूटर की मशीन की तरह की आवाज़ में बोलती है। फिरदौस कांगा एक लेखक और एक पत्रकार हैं जो मुंबई में रहते हैं और काम करते हैं। फिरदौस जब पैदा हुए थे तो बचपन में उनकी हड्डियां नाजुक और लोचदार थीं। हॉकिंग की तरह वे भी व्हीलचेयर में ही चलते हैं। दोनों जो ग्रेट मैन हैं वो इस बात पर अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं कि व्हीलचेयर में जीते रहने के क्या मायने हैं और जो नॉर्मल लोग हैं वो हैंडीकैप्स के प्रति यानी विकलांगों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed and true physicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestsellers ever lived here. मेरा कैम्ब्रिज इंग्लैंड के रूप में रूपक था और यह बहुत अद्भुत बात थी कि जब मैं वहाँ से वापस आया तो मेरे अंदर कुछ अलग हो गया था क्योंकि मेरी मुलाकात वहाँ स्टीफन हॉकिंग से हुई थी। जब मैं कैम्ब्रिज में पैदल चल रहा था तो जो एक गाइड थे जो कि रास्ता बताने वाले थे, उन्होंने स्टीफन हॉकिंग का नाम लिया। वह बेचारा जो अब एकदम अक्षम है, अपाहिज हो गया था और तथापि वह आइजैक न्यूटन का सुयोग्य अधिकारी है जिसकी वह कुर्सी अब विश्वविद्यालय में रखता है। और मैं चल पड़ा क्योंकि मैं भूल गया था कि वह सर्वाधिक सबसे ज़्यादा तीव्र बुद्धि और पूरी तरह से लकवे के शिकार है। समय का संक्षिप्त इतिहास किताब जिसकी सबसे ज़्यादा बिक्री होती थी उसके लेखक वही थे। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside phoned Stephen Hawking's house. There was his assistant on the line and I told him I had come in a wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all the way. To write all my travels in Britain, I had to see Professor Hawking. Even 10 minutes would do. Half an hour, he said, from 3:30 to 4. जब वॉकिंग टूर कंप्लीट हुआ और बातचीत पूरी हुई तो मैं फ़ोन बूथ की तरफ भाग कर गया और लगभग फ़ोन के तार खींचते हुए ताकि मुझ तक पहुंच सके स्टीफन हॉकिंग के घर फ़ोन किया। फ़ोन पर उनके असिस्टेंट से बात हुई और मैंने उन्हें बताया कि मैं भी भारत से व्हीलचेयर के द्वारा आया हूँ ताकि मैं अपनी ब्रिटेन की जो जर्नी है, जो मेरी यात्राएं हैं, उसके बारे में लिख सकूं। मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना था। सिर्फ 10 मिनट भी काफ़ी थे। आधा घंटा, उसने कहा। 3:30 से 4 बजे तक।
And suddenly I felt weak all over. Growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. Then you know how much is possible and you reach out further than you even thought you could. I haven't been brave, said his disembodied computer voice. The next morning, I have had no choice. और अचानक से मुझे कमज़ोरी महसूस होने लगती है। विकलांग होते हुए जब वह व्यक्ति खड़ा हुआ तो उससे उन लोगों की उकताहट होती है जिससे आप बहादुरी दिखाने मानो साहस का कोई खाता अपने बैंक में खोल रखा हो और वहाँ से चेक काट कर साहस दिखाने में तुम आलस्य दिखा रहे हो। एक ही चीज़ जो तुम्हें दृढ़ता प्रदान करती है, जो तुम्हें स्ट्रेंथ देती है, वह है अपने जैसे किसी दूसरे विकलांग को देखना जिसने जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल की हो। तब तुम जानते हो कि कितना कुछ आपके लिए कर पाना संभव है और तुम जैसा विचार रखते हो उससे कहीं आगे जा सकते हो। मैं बहादुर नहीं रहा। उस अदृश्य कंप्यूटर की आवाज़ में उसमें कहा, आफ्टरनून में कहा, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, कोई और विकल्प नहीं था। Surely I wanted to say living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice, but I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. There he was, tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him. His long, pale fingers, every so often, his eyes would shut in frustrated exhaustion, and sitting opposite him, I could feel his anguish. The mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses. मुझे निश्चित रूप से कहना था कि सृजनात्मक शरीर यानी कि डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी के साथ क्रिएटिवली जीने की जो वास्तविकता थी वो मेरे पास एकमात्र विकल्प था, एकमात्र चॉइस थी। लेकिन मैं शांत रहा क्योंकि जब भी मैं उनके सामने बोलता था तो मेरे अंदर अपराध की भावना पैदा होती थी, जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मैं उन्हें बोलने को मजबूर करता था। अपने हाथ में एक छोटा सा स्विच लिए वो बैठे हुए थे। वे कंप्यूटर पर शब्दों को खोजना, यही उनकी उंगलियों की थोड़ी बहुत एक्टिविटी थी। उनकी आंखें नीरस थकान से बंद हो जाती थी और उनके सामने बैठा हुआ मैं उनकी व्यथा और क्लेश को अनुभव कर सकता था। उनके दिमाग तो विचारों से ओत-प्रोत था, जो बर्फीले शब्दों व शव जैसे कठोर वाक्य बोलकर बाहर निकलते थे। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, I know that's not true myself. Are you often laughing inside? About 3 minutes later, he responded, I find it amusing when people patronize me. And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? The answer flashes, yes. Then he smiled his one-way smile, and I knew, without being sentimental or silly, that I was looking at one of the most beautiful men in the world. A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three-dimensional. ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि विकलांग लोग हमेशा दुखी रहते हैं। मैंने कहा, मुझे पता है कि यह सच नहीं है। क्या तुम दिल से हंसते हो? लगभग 3 मिनट के बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिया। मुझे रुचिकर लगा, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा जब लोग मुझे संरक्षण देते हैं। और क्या आपको ख़राब नहीं लगता जब मेरे जैसा इंसान आपके पास आता है और आपके काम में रुकावट डालता है? कुछ एक क्षण में जवाब आया, हाँ। जब वे मुस्कुराए तो मैं जानता था कि वह ना तो भावुकता दिखा रहे हैं और ना ही मूर्खता दिखा रहे हैं, कि मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान की तरफ देख रहा हूँ। उनकी पहली झलक अचंभित करने वाली होती है क्योंकि वह निश्चल फोटोग्राफ की तरह
एक स्टिल फोटोग्राफ की तरह हैं, जो मानो मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर्स में छपे सभी फोटोग्राफ्स की तरह, जो कि 3 डायमेंशनल हो गए हों या 3 आयामी हो गए हों। Before you, like a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside, is the incandescent of a man, the body almost irrelevant, exists only like a case made of shadows. So that I, no believer in eternal souls, know that this is what each of us is. Everything else an accessory. आपके सामने एक मनुष्य की आंतरिक आभा दिखाई दे रही है, ऐसी लालटेन की तरह जिसके शीशे की दीवारें इतनी पतली हो गई हैं कि सिर्फ अंदर की जो रोशनी की लौ है वो दिखाई देती है। शरीर करीबन बिल्कुल असंगत हो गया है, जो कि प्रतिबिंब से निर्मित साए की तरह था, जो कि सिर्फ उसका शैडो नज़र आ रही थी। और इस तरह से मैं जो शाश्वत आत्माओं को मानने वाला हूँ, जो रियल सोल्स होती हैं, एटर्नल सोल्स होती हैं, उनको मानने वाला हूँ। यह समझो कि हम में से हर एक की यही स्थिति है। बाकी सभी चीज़ें अनावश्यक और सजावट वाली हैं। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. I don't think there is anything good about being disabled. I said, you do discover how much kindness there is in the world. Yes, he said it was a disadvantage of his voice synthesizer, that it could convey no inflection, no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. आपके विचार से विकलांग होने में सबसे अच्छी चीज़ क्या है? मैंने उससे पहले ही पूछा। मैं नहीं सोचता कि विकलांग होने में यानी हैंडीकैप्ड होने में कोई भी अच्छाई है। मैं सोचता हूँ और मैं बोला कि तुम तलाश कर सकते हो कि दुनिया में कितनी काइंडनेस है, कितनी दयालुता है। हाँ, उसने कहा। यह उसकी आवाज़ को सही करने की कोशिश का एक कम नतीजा निकलने वाला था कि ये जो मशीन थी उसकी आवाज़ के उतार चढ़ाव, स्वर परिवर्तन, जो उनके स्वर में चेंजेस आ रहे थे, उसको दिखा पाता था। और मैं नहीं बता सकता था कि कितने उत्साह के साथ वो मेरे साथ राज़ी थे, मेरी बात से सहमत थे। Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time, I wanted to make every one of our 30 minutes count. I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. How little it mattered then that I would never walk or even stand. I told him how he had been an inspiration beyond Clinch for me and surely for others. Did that thought help him? हर बार जब भी मैं अपनी कुर्सी हटाता था और या फिर टाइम देखने के लिए अपने रिस्ट मोड़ता था, कलाई मोड़ता था, मैं अपने 30 मिनट का प्रत्येक मिनट जो है, हर एक मिनट जो है उसे उपयोगी बनाना चाहता था। मुझे अपने शरीर की संभावनाओं को देखकर बड़ी राहत और प्रसन्नता होती थी, खुशी होती थी। उस समय यह बात कितनी मामूली हो गई थी कि मैं ना तो चल सकता था और ना ही खड़ा हो सकता था। मैंने उन्हें बताया कि आप मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, आप मेरे लिए इंस्पिरेशन हैं। यह कोई बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाली बात नहीं है और निश्चित रूप से बाकी लोगों के लिए भी क्या इस विचार ने उनकी कोई मदद की होगी। No, he said, and I thought how foolish I was to ask. When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. Is there any advice you can give disabled people? Something that might help them make life better? They should concentrate on what they are good at. I think things like the Disabled Olympics are a waste of time.
उन्होंने कहा नहीं, और मैंने सोचा कि मैंने कितना मूर्खतापूर्ण सवाल पूछ लिया। जब आपका शरीर एक घुटने भर कमरे के समान हो गया था, जिसकी दीवारें रोज छोटी होती जा रही हों, तो यह जानने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हंसने वाले बाहरी लोग उनकी तारीफ के साथ साथ तुम्हें देखकर स्थिर सांस ले रहे हों। क्या कोई सलाह है जिससे आप विकलांग लोगों को दे सकें कि वो अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं? अच्छी चीज़ों पर उनका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि ये सब बातें विकलांग ओलंपिक की तरह समय को बर्बाद करने जैसी हैं। I know what do you mean. I remembered the years I had spent trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was, and how gleefully I had unstringed it one night. The half hour was up. I think I have annoyed you enough, I said, grinning. Thank you for. Stay, I waited. Have some tea. I can show you the garden. The garden was as big as a park, but Stephen Hawking covered every inch, rumbling along in his motorized wheelchair while I dodged to keep out of the way. We could not talk very much. The sun made him silent. The letters on his screen disappeared in the glare. मैं आपका मतलब समझता हूँ। मैं उन वर्षों को याद करता हूँ जब मैं बड़े स्पेनिश गिटार से खेला करता था, जो मुझसे साइज़ में काफ़ी बड़ा था। उसको बहुत ज़्यादा खुशी के साथ खेलते खेलते मैंने एक रात तोड़ दिया। आधा घंटा इसी तरह ख़त्म हो गया। मैं सोचता हूँ कि मैंने कुछ अधिक ही आपको परेशान कर दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए आपका शुक्रिया। ठहरिए, मैंने इंतज़ार किया। चाय लीजिए, मैं तुम्हें एक बाग दिखाता हूँ। वो जो बगीचा पार्क के समान बड़ा था, लेकिन स्टीफेंस हॉकिंस ने पूरी दूरी अपनी व्हीलचेयर की खड़खड़ाहट की आवाज़ करते हुए मोटरसाइकिल से तय की, और मैं उस दौरान आपको बचाता रहा। हम लोग ज़्यादा बातें नहीं कर सके क्योंकि शाम हो चुकी थी और शब्द उनकी स्क्रीन से एकदम गायब होते जा रहे थे। An hour later, we were ready to leave. I didn't know what to do. I could not kiss him or cry. I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening. I looked back and I knew he was waving, though he was not. Watching him, an embodiment of my bravest self. The one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone. I knew that my journey was over for now. 1 घंटे के बाद हम लोग जाने को तैयार थे। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं। ना तो मैं उन्हें जो है हक कर सकता था, ना मैं उनको प्यार कर सकता था, ना चिल्ला सकता था। मैंने उनकी बाह पकड़ी और जो गर्मी की शाम में मैं उनको बाहर ले आया। मैंने पीछे मुड़कर देखा और समझ गया, क्योंकि अपना हाथ हिलाकर अनिच्छा प्रकट की थी जिसे मैं देख रहा था। स्वयं की बहादुरी का साकार रूप था, जिस पर मैं इतने सालों से यकीन कर रहा था। अकेले मैं जान गया कि मेरी जो जर्नी थी यहाँ पर समाप्त हो गई अब तक की।